जाने क्यों वो शाम भी भूल गए, पहले तो भूले मुझको सनम तुम, फिर मेरा नाम भी भूल गए। जे कुछ भी नहीं याद तैनू, ना जा वे मार दे मैनू, मेरा की दस दे कसूर, क्यों होया मेरे कोलों दूर। पहली बारी हमने पिया था पिला के वो जाम भी भूल गए, पहले तो भूले मुझको सनम तुम, फिर मेरा नाम भी भूल गए। हाल हमारा तेरे बिन ओ यारा, हाल है अपना ऐसे, निकल कर पानी से मछली कोई रे तड़पती होती है जैसे, बेरात तो रात जिंदगी जो कट दे, हाय रब करे तेन भी कोई छड़ दे, मेरा के दस दे कसूर, क्यों होया मेरे कोलों दूर। रहना हमें याद करते कहा था, ये छोटा सा काम भी भूल गए, पहले तो भूले मुझको सनम तुम, फिर मेरा नाम भी भूल गए। Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार and we are back with another power packed episode of T Series and Red FM's इंडी है हम Season 2। अभी जो गाना मैंने परफॉर्म किया, this single is very very close to my heart for many reasons, क्योंकि I have collaborated with one of my favorites, the boy with the magic touch. He has songs of love, heartbreak, from your guy gang to the wedding gang. थोड़ी देर में he will join us right here, the rock star मिलन गाबा। पर उससे पहले हमारे साथ होगा एक ऐसा यूनिक बैंड जिन्होंने अपने कर्नाटिक म्यूजिक की ट्रेनिंग और वेस्टर्न म्यूजिक की इंक्लिनेशन को ऐसा जोड़ा that it became their signature sound. Let's give it up for Anand Bhaskar Collective. East meets West, ये वाली फिलॉसफी आपने वर्ड्स में बहुत सुनी होगी, but the band Anand Bhaskar Collective brings it alive and how. Carnatic के rich heritage को rock riffs में weave करके the kind of music they make is fusion at its best. सिर्फ इनका म्यूजिक ही नहीं है जो इनके बैंड को स्पेशल बनाता है, but also their lyrics which are all about human emotions and aspirations. इनका ट्रैक मैं हूँ ज़मीं breathtaking notes के साथ साथ lyrical brilliance भी रिफ्लेक्ट करता है। वोकलिस्ट आनंद trained in Carnatic music for 20 years और फिर वेस्टर्न म्यूजिक की तरफ इंक्लिनेशन हो गया, तो इन्होंने सोचा दोनों को मिला दिया जाए और यही बात इनके साउंड को मैजिकल बनाती है। They have performed at big venues and major music festivals across, and their live set is something that is a sure shot vibe. Now presenting Anand Bhaskar Collective. Welcome to the show, guys. Hi, thank you. आनंद भास्कर कलेक्टिव, और डेफिनेटली इस नाम के पीछे कुछ कहानी है जो मुझे जाननी है। So the story was that back in 2014, I was trying to write some music. And by the way, let me just introduce the band members. This is Shishir Tao. He plays drums for us. This is Rishi Giridhar. He plays guitars. This is Neil Patel. He plays bass for us. So Neil and I have been friends for nearly a decade and a half. I was writing some music and I asked Neil कि तू बजाएगा क्या album पे? So he was like, yeah, for sure, why not? So then we did some songs and then we started getting these enquiries where, the event organizer would ask me, what's the band called? So I said, for now, just put Anand Bhaskar. And I was scrolling on Facebook, I remember. And I saw another band's name which ended in Collective.
So while I was on call with her, I Okay. said, you know what, call the band Anand Bhaskar Collective. So it was a very short-term stopgap arrangement because I hadn't intended to call the band, but the name stuck. Like all four of us, we write together. You know, we're all Okay. equals in the band. It's not Anand Bhaskar's band, but because the name, अब वो नाम stuck हो गया है, and everybody knows that all our fans call us ABC anyway now. So that's how the name came about, really. So yeah, that's pretty much Alright. the story. So guys, to perform on stage is a great feeling, and I'm sure you guys have an amazing time doing that. Yeah. So why don't you all share some good memory of on stage performance with me? Yes. So there was this one time we played a college festival, and it so happened was that when the students were preparing for the festival, they were listening to one of our songs, a song called Fana. Okay. They really started liking that song. So when we played their college festival and when we started playing Fana, I remember the entire college singing the song word to word, and Wow. that is a very big deal for an indie, like an independent band. I remember breaking down on the stage because it was so overwhelming. And I couldn't Wow. really bring myself to sing up until the second verse because it was so overwhelming. So I think that was one of the best moments we've had on stage. And I can totally agree yes. on that. I think वो bestest feeling होती है Correct. जब आपके साथ audiences एक word गाती है. And for an independent song, which sometimes doesn't get that kind of reach to get that much of fame and people remembering the lyrics, it's a huge deal. Yes, And it's yes. really commendable. Carnatic music, you fuse it with Western music. Correct. How does this whole idea, whose brainchild is it? मतलब ये आपके बैंड की USP भी है. So where does this idea, मतलब ये हो जाता है या ये deliberately आप लोग plan करके उसको fuse करते हैं? मतलब what's the story behind this? the story behind that is that before ABC, I've had a bunch of bands. I used to sing a lot of English songs with them. And then when I started writing, हुआ ये कि 26/11 terror attacks जब हुए थे, I was very disturbed. And मैं generally disturbed mindset में songs लिखता नहीं हूँ, but उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि ऑफिस में रात के 2 बजे तक हम लोग फंसे हुए थे और उस टाइम पे मैं बहुत ही जूनियर पोजीशन पे था तो बहुत सैलरी भी नहीं कमाता था तो So you were stuck during those Yes. attacks? मतलब Yeah. you were stuck? Then when I decided to go home, the cabs were charging exorbitant amounts of money. So I was frustrated and I was like कि यार मतलब ये क्या हो रहा है? तो घर में घुसते मेरे दिमाग में एक मेलोडी आई और मैंने वो मेलोडी सामने गिटार पड़ा था तो मैंने वो मेलोडी गानी शुरू की, हम करनी शुरू की और साथ में ही मेरी लिरिक्स की नोटबुक पड़ी थी. तो मैंने लिखना शुरू किया तो आई रियलाइज कि मैंने मतलब कर्नाटिक सिंगिंग में ट्रेनिंग ली है एंड आई एम ऑल्सो अ वेरी एविड रॉक म्यूजिक फैन. तो आई वाज लाइक व्हाट इफ वी सॉर्ट ऑफ merge this. हमें बनाना था थोड़ा energetic music which blended different elements perfectly as opposed to how you see in fusion there are separate elements walking together. Here these elements are blended with each other. तो जब पहली बार वो गाना बना उस गाने का नाम था हे राम. अच्छा. उस गाने से थोड़ा जो है हमारे म्यूजिक को एक रिकग्निशन मिला तो we realized कि okay, you know what, maybe this does have some potential. तो वैसे करके आगे जाके हमने और मतलब गाने उस जोन में बनाने शुरू किए. ये 26/11 वाली जो आपने मुझे कहानी बताई कि आपको उधर एक मेलोडी स्ट्राइक हुई, आई थिंक दैट्स वेरी अमेजिंग एंड आई वांट टू हियर दैट ट्रैक जो मैं अभी जाके सुनूंगी. पर उससे पहले आप लोग यहाँ पर हैं एंड यू कैन नॉट लीव दिस शो विदाउट योर परफॉर्मेंस बिकॉज जब भी कोई भी बैंड यहाँ आता है तो मेरा ये सबसे फेवरेट मोमेंट होता है when they perform for me and all the viewers and listeners who are watching us and hearing us. So what are you going to perform for us today? So we are going to perform a song called Meri Jaan. Oh, okay. The song is about about the moment when you look at somebody you love and you've never seen anything more beautiful. All right. So you're almost compelled to ask them, how do you manage to look so beautiful? So lyrics भी ऐसे ही हैं कि यूं इठला के इतराना सीखा कहाँ मेरी जान. So the song is about that. So Beautiful. I hope you guys like Beautiful. Let's hear it. it. Awesome.
छोटा सा यूं इठला के इतराना सीखा कहाँ मेरी जान घर कर गया है एक ख्याल छोटा सा ऐसा कायल कर जाना सीखा कहाँ मेरी जान मेरी Guys, that was an amazing performance. मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ जो आपकी परफॉर्मेंस एंजॉय कर रही थी. I have with me जिनकी जिंदगी की पौड़ी उन्हें सक्सेस के उस लेवल पर ले जा चुकी है जहाँ हिट गाने के लिए उनका नाम ही काफी है. The boy who we love for his infectious laughter. Let's welcome Milind Gaba. लाफ वाला क्या है? हंसते हंसते आप. हाय Anand Bhaskar Collective is जी. here with. Hi, oh wow, hi Milind. गाइस मुझे बहुत अच्छा लगा. आई हर्ड जो कहना जो आपने मूड इंडिगो में परफॉर्म किया था बहुत ही अमेजिंग. Thank you so much. द बेस्ट पार्ट इज़ कि आप सदर्न म्यूज़िक को इतना एनकरेज कर रहे हैं, इतना आगे बढ़ रहे हैं. स्पेशली द वायलिनिस्ट, ही इज़ अमेजिंग. गिव माई पावर टू हिम. एडवाइस तो नहीं बट एक चीज़ कहूँगा कि यू नो बी पेशेंट. अप्स एंड डाउन्स होंगे बट यहाँ से बिल्कुल सटल रहना, स्थिर रहना एंड ऑलवेज वर्क फ्रॉम योर हार्ट. वी आर नॉट बिजनेसमैन, वी आर म्यूजिशियंस, सो वर्क फ्रॉम हियर. Thank you. There was Milind Gaba giving his piece of advice and his appreciation for you guys. You guys have an amazing future in the independent music industry and I really look forward to catch you all performing live someday. Thanks for being with us on the show and I'm going to catch you also. Awesome. Thank you so much. So Milind, welcome to Indie Hai Hum Season 2. धन्यवाद. बहुत अच्छा लग रहा है. नाम के बाद I think मैं आपसे आज मिल रही हूँ, है ना? वैसे इंस्टाग्राम पे तो आई कीप सीइंग योर वर्कआउट पोस्ट्स एंड आई कीप एनकरेजिंग अबाउट. इनको मैं कहता रहता हूँ कि कुछ छोले भटूरे खाओ. एग्जैक्टली ये खुद 6 पैक्स बना रहे हैं और मुझे बोलते हैं हर मेरी वर्कआउट पोस्ट के नीचे ईट पाव भाजी, ईट छोले भटूरे. आपको खाना चाहिए. व्हाई यू कीपिंग योरसेल्फ डिप्राइव्ड? अच्छा, आई नो ये दिल्ली की एक बहुत खास बात है. खाना इज आवर फेवरेट थिंग. आई डोंट कीप माई सेल्फ डिप्राइव्ड. बाय द वे आई ईट एवरीथिंग. छोले भटूरे खाते हो आप? यस, गुलाब जामुन सब कुछ अभी आ रहे हैं. बस ये सारे हम क्वेश्चंस कर लेते हैं. एक गेम है छोटी सी, वो खेल लेते हैं और फिर यहाँ खाना ही खाना हो जाएगा. करो जी करो. That is the infectious laughter we were talking about. Milind, so you're a Delhi boy at heart. मैं भी दिल्ली दी कुड़ी हूँ. So for us, you know, we've always heard कि यार दिल्ली के लड़कों का ना एक typical notion होता है, लोगों के माइंड में सेट होता है. So I'm gonna say that one by one मैं कुछ चीजें बताऊंगी और तुम्हें बताना है if that applies to you या नहीं. Okay. ठीक है? So let's get to know the true Milind Gaba today. Okay. दिल्ली के लड़के बहुत फैशन कॉन्शियस होते हैं. जरा जूते देख लें. ओके या ऑरेंज शूज, व्हाइट जैकेट, ये हाइट के करके पहने. ये हील्स हाइट के करके. अरे यार फैशन कॉन्शियस तो होते हैं. इस बंदे ने प्रूव कर दिया है ये. Obviously. Delhi boys are big flirts. मैं इनोसेंट वाला फ्लर्ट करता हूँ, मतलब शरीफ वाला फ्लर्ट करता हूँ. लाइक यू वेरी ब्यूटीफुल. You liked my song, that means a lot. Keep supporting and stay beautiful. ऐसा बस. अच्छा, I thought मुझे बोल रहा. हाँ मैं you are beautiful. फ्लर्ट्स होते हैं बट थोड़े शरीफ टाइप के फ्लर्ट्स. हाँ मैं शरीफ हूँ बट मुझे लड़कों का
ओके, ये शरीफ वाले दिल्ली के फ्लर्ट हैं। जी। दिल्ली के बॉयज मामा बॉयज होते हैं, क्या आप हैं? कौन नहीं होता मम्मा बॉयज? मम्मा इज सबको प्यारी होती है मम्मा यार। तो मम्मा इज द बेस्ट गिफ्ट फ्रॉम द गॉड वी हैव गॉट। तो मेरे लिए मामा तो बॉय होना इज वेरी क्यूट। हाँ, तो मम्मा बॉय होना चाहिए, सबको होना चाहिए। क्यूट। जब तक माँ दी नूह नहीं आंदी तब तक मम्मा बॉय ठीक है। ऑलराइट, सो दिल्ली के बॉयज जिंदा दिल होते हैं, दे कैन डू एनीथिंग फॉर दोज दे लव। हाँ, ये आई थिंक ये मेजर डिफरेंस है। अगर आप दिल्ली को किसी भी और सिटी से कंपेयर करो तो ऐसे भाई बना लेते हैं और वो रिश्ता चलता रहता है। लाइक आई हैव मेड माई ब्रदर्स इन पार्टीज और मैं रैंडम ऐसे मिला हूँ और अभी तक वो मेरे साथ है। दिल्ली के बॉयज की जनरल नॉलेज बहुत वीक होती है। मेरी सोच इतनी समझ के आंसर देना। यार, अगर तुम ये पूछोगे ना कि फाइनेंस मिनिस्टर को बना तो ये मुझे नहीं Who's the vice president of India? चलो बता दो। और बताओ, ठीक है सब बढ़िया? अच्छा, वीक होती है यार दिल्ली के बॉयज की जीके, बहुत वीक होती है। मुझे प्राइम मिनिस्टर पता है, पूछो। वो सारी दुनिया को पता है, इतने आसान सवाल नहीं पूछते इस शो पे। दिल्ली बॉयज की पिकअप लाइंस बहुत चीजी होती है। पिकअप लाइंस बहुत एंड यू हैव टू गिव मी वन ऑफ द बेस्ट लाइंस जो आपके लिए वर्क की। ए यार, मैंने कभी ऐसी चीज नहीं मारी गाने नहीं की लाइन ही बोल दी होगी ना कि तू इतनी सुंदर है मैं क्या करूं। ओह, that was the cheesy line. तू इतनी सुंदर है नहीं, एक और भी था कि are you like this cause I'm falling for you, ऐसा कुछ था ना, पता नहीं। बट मैंने कभी मारी नहीं, कभी, अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कभी किसी लड़की की पिकअप लाइन मारी नहीं। So how did you put out your girlfriend? ऐसी जिस इनोसेंस और ऐसा, मतलब What's your girlfriend's name? शी इज नॉट माय गर्लफ्रेंड एनीमोर। Oops. हाँ, मतलब लाइक वो प्यार बढ़ चुका है, ऐसा बड़ा हो चुका था। Okay, so Milind Gaba is gonna give us the news of wedding bells very soon. Are you making that revelation on my show? हाँ ठीक है, ऑब्वियसली शादी सबको अरे करनी होती है, वाह। मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी करूँगा जब Very टाइम आएगा। good. Congratulations. थैंक यू। हम आएंगे, आपकी शादी सेलिब्रेट करेंगे बिल्कुल। बहुत जल्द। और आपने सब कुछ ऐसा जंक खाना है। 200%. I won't let you have ये जो ब्रोकली एंड बेल मैं पेपर्स वैसा जो भी। खाती भी नहीं हूँ, क्या पता होता है नहीं वो? क्यों ऐसा नोशन है, मैं सब कुछ खाती हूँ। क्यूनिया क्या होता है वो? किनोआ। कि हाँ वही यार। नहीं, क्या लड़कियों के क्या क्या होते हैं यार? किनोआ। हाँ जो भी है वो नहीं खाना दूंगा, तो मेरी शादी में होगा भी नहीं वैसे। Alright, दिल्ली के लड़के शक्ल से स्वीट बट हरकतों से बहुत बदमाश होते हैं, इज इट ट्रू? डिपेंड्स, बदमाशी क्या करते हैं वो। मैं थोड़ा सा हूँ बदमाश, बट जैसे कि अच्छा वाला, लाइक आई मेक एवरीबडी लाफ, आई स्प्रेड हैप्पीनेस एंड वो थोड़ा सा वो कैसा, मतलब कि अच्छा तुम दिल्ली से हो पता चल जाता, तो वैसा वाला हूँ मैं। So मिलिंद के अंदर सभी दिल्ली वाले ट्रेट्स हैं। हाँ, 10 on 10। टिपिकल 10 on 10 हाँ। दिल्ली दा मुंडा। या अच्छा, हिप हॉप और रैप सीन के बारे में बताओ। यू नो आपके बहुत सारे सॉन्ग्स में ऑल्सो हैव सीन, आई थिंक योर सॉन्ग शी डोंट नो, देयर इज अ रैप पोर्शन। सो ऐसा कभी होता है स्टेज पे, लाइक सिंगर्स, काफी सिंगर्स लिरिक्स भी भूल जाते हैं, तो रैप तो याद करके परफॉर्म करना, व्हाट इज? मैं गाने के लिरिक्स भूल जाता हूँ, पता है। मैं पीछे मेरा एक शो था एंड आई वाज सिंगिंग योर सॉन्ग। वो शराबी क्या शराबी, दिल में जिसके गम ना हो। साकी नहीं, हाँ तो वो आया था ना, वो शराबी क्या शराबी, जो नशे में ना रहे, तो जो नशे में ना रहे मैं खा गया। दिल में जिसके गम ना हो, वो शराबी क्या शराबी, दिल में जिसके गम ना हो, लुट गया जो शराबी, दिल में जिसके गम ना हो। I want to take this off. Oh my god. Yeah. All right, it's getting hot. Getting hot over here. All right. Okay. So Milind, अब थोड़ी things, let's take it on a lighter and a musical note. जी। So आपका favorite गाना जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है and I absolutely groove to it is She Don't Know. Okay. And I'd like you to perform it for all of us out here. She Don't Know ने अभी कंप्लीट किए 500 मिलियन, दैट्स माय मेरा पहला जिंदगी का सोलो गाना है जिसने 500 मिलियन क्रॉस किए। Wow. एंड आई एम थैंकफुल टू ईच एंड एवरी वन आउट देयर जिसने मुझे सपोर्ट किया। हेट भी किया तो ठीक है भाई, धन्यवाद। नहीं, हेट किसी ने नहीं किया, नहीं मतलब हाँ, सबने मतलब प्यार होते ही हैं, दिया है इस दोनों गाने तरह को। के लोग होते हैं। या here goes. Let's hear it. हाँ दिन विचों तेरे लिए टाइम ਕੱਢ ਕੇ
करदा मैं प्रॉमिस मिलन आऊंगा मैनू पता है तू फैन सलमान खान दी ओदे गाने गा के तेनू मैं सुनाऊंगा होवां डेट ते ना लेट गल सिद्धी करां स्ट्रेट होर मुंडियां दे वांगू करां गल्लां ना चीज़ी she don't know दुनिया जी दे ते crazy she don't know मुंडा ओदे ते crazy Woo! Thank you. That was an amazing performance, Milind. परफॉर्मेंस हो गई, बहुत सारी बातें भी हो जी। गई और अब एक गेम खेलने जाते जाते। बिल्कुल इस गेम का नाम है पहचान कौन। सिंपल गेम है, कुछ डरने वाली बात नहीं है। ओके मुझसे पता नहीं क्यों यहाँ आके सब लोग डर रहे हैं। जैसे ही मैं गेम का नाम लेती हूँ सब लोग घबरा जाते हैं, पता नहीं ये क्या पूछेगी अब। टीके गेम खिला रही हैं तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो है। बहुत आसान है आपकी गेम। हम बिकॉज you're a special friend और मुझे लगा यार मिलिंद को बिल्कुल फंसाना नहीं है। स्पेशल नहीं, बहुत सिंपल गेम। मैंने कहा चूज करो मिलिंद के लिए बेस्ट वाली जिसमें वो जीतेगा ही जीतेगा। ठीक है। ऑलराइट, सो गेम के रूल्स थोड़े बहुत बता देती हूँ, है ना। तो मैं आपको आपके कलीग्स के असली नाम पूछने वाली हूँ। ओके ठीक है, एंड यू हैव टू टेल मी व्हाट इज दिस आर्टिस्ट पॉपुलरली नोन एज। जैसे कि इट्स कॉल्ड द नाम नॉलेज। ठीक है ठीक है, और इफ 50% से ज्यादा आपने आंसर्स दे दिए सो आई विल डिक्लेयर यू पास। ओके ठीक है तो लेट्स गो। या हु इज गुरिंदर कौर केंट? ओ यार वो नहीं है कोई टाइमर। गुरिंदर कौर कैंट। कम ऑन मिलन। आई कैन टेक अ चांस। कॉर्बी? नहीं, नहीं। you've collaborated with her on a अरे मिस पूजा। yes, how Sorry, could यार। you? मैंने हिंट मैं दे उनको दिया। पूजा जी बोलता हूँ बस। that's पूजा her जी। full name, that's her full name। ओके आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया। बादशाह भैया। हाँ, या प्रतीक बच्चन। बिप्रक। Guys, I love you, you know that. Right. Okay, guess who is Roger David? अरे हाँ मैंने बोहेमिया। ये इसको मुझे लगता है कुछ क्वेश्चंस पता। नहीं आई स्वेयर। Getting all of them right. Okay, ये वाला भी इजी है। सुखदीप सिंह। है? सुखदीप सिंह। सुखी? या। ओके। नेक्स्ट है Who is Dylan Nair? रफ्तार भाई। ओके, ये वाला बता दो, ये आपके बहुत ज्यादा क्लोज है मुझे पता है। रिदेश सिंह। यो हाँ हनी सिंह। उस्ताद जी मैं बोलने वाला था कि अगर मैं बहुत ज्यादा। ओके, लास्ट वन, द सिंपलेस्ट, जसदीप सिंह गिल। जसदीप सिंह गिल। इसकी तो क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है। जस्सी गिल। ओके सो आई एम हेल्पिंग यू शुक्र मैंने आउट। आस्था गिल नहीं बोला। सो दैट वाज राइट। मिलिंद पास यार, काफी। दो में तो मैंने हेल्प कर दी, बाकी बट you got all your guesses right. तो It was amazing having you on the show. Thanks for being with me on Indie Hai Hum Season 2 and keep rocking with your songs. all your love and And with all your lovely music videos. Thank you so much. And with that rocking physique of yours. हाँ बस ये अब मतलब मैं कोशिश करूँगा कि ये चलती रहे बस। जहाँ पे मेरे मुंह में बटर नान लगा ना तो बहुत मुश्किल है। नहीं, you're too dedicated and focused. I don't think ऐसा होगा। ठीक है बट खाने के सामने कौन फिर जीत सकता है? दिल्ली की वीकनेस है, दिल्ली के लोगों की। Anyways, before you go, I want a digital autograph from you as a memory with us. और आप लोग तो जानते हैं that I wait for your questions and comments. All you gotta do is use इसमें कोई game है? hashtag #AskTulsikumar. Please sign. Okay, Milind is trying to distract me. Use hashtag #AskTulsikumar और साथ में टैग करो मुझे Red FM India and T Series को on social media. And do not forget to tune in to Red FM to listen to Indie Hai Hum every Saturday and Sunday. And to all the indie artists out there, keep up the hard work and hustle. अपने बारे में comment section में बता दो and we will connect with you super soon. Keep the vibe alive, guys. Bye. Bye. Season 2 with Tulsi Kumar.